Assalamu alaikum. I'm teaching University of Education. My subject is Techniques of Painting, semester 2 BFA. Course code fine 1115. Today lecture is 15. Title is Impressionism in Painting and teacher name is Miss Shumaila Khan. आज के इस लेक्चर में हम इम्प्रेशनिज़म आर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इम्प्रेशनिज़म व्हाट इज़ इम्प्रेशनिज़म एंड देयर स्टाइल, देयर डेवलपमेंट एंड उसको कैसे पहले सोसाइटी ने रिजेक्ट किया फिर एक्सेप्ट किया. ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस अबाउट इट. What is Impressionism? Impressionism is an art movement developed by a group of artists in the late 18th century. Vincent van Gogh 1853 to 1890, Claude Monet 1840 to 1926, Alfredo Sicily 1839 to 1899, Edward Degas 1834 to 1917. ये चार आर्टिस्ट का जो ग्रुप है इसको इम्प्रेशनिज्म मूवमेंट जो थी उसको डेवलप जो किया था इन लोगों ने किया था. ठीक है. अब द न्यू टेक्नोलॉजी इन आर्ट के अंदर ये एक न्यू टेक्नोलॉजी थी. उससे पहले इस तरह का काम नहीं किया जाता था. बड़ा क्लासिकल और बड़ा रियलिस्टिक सा काम होता था और बड़ा ब्यूटीफाई काम होता था. द इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट फेल्ट द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ फोटोग्राफी वाज द running the art of painting. They felt the need to create a new style of painting in which accurate rendering of the subject was not the main focus. The Impressionists changed the approach to painting by recreating the sensation in the eye that view the subject rather than recreating the subject. History: late 19th century, 1870 to 1890. Paris was where it started. The center of the art would then it spread to the other parts of Europe. Okay. Impressionist painters were considered radical in their time because they broke many of picture making rules set by earliest generation. They found many of their subject in life around them rather than in history. Impressionism, their goal was to create an impressionism of their subject. Quick claims, मतलब जैसे पहले मैंने बताया कि इसमें ये था कि पेरिस में ये स्टार्ट हुआ था. ठीक है. उससे पहले जो था बड़ा मॉडिफाई करके और बड़ा ब्यूटीफाई करके जो है ना वो पेंटिंग्स बनाए जाती थी. बड़े क्लासिकल पेंटिंग बनाए जाते थे हर चीज़ को बड़ी डिटेल के साथ. और माइनर सी चीज़ भी जो थी ना उसको बड़ी डिटेल से पेंट करते थे. लेकिन इन्होंने क्या किया, जंप आउट किया. सारे जो ट्रेडिशनल जो रूल थे ना उनको ब्रेक करके एक नई चीज़ जो है ना वो डेवलप की. कि इनका जो मेन फोकस था ना वो बस जल्दी से एक क्विक क्रिएट करना था. कि एक कैप्चर, एक टाइम, एक मूवमेंट को इन्होंने क्रिएट करना स्टार्ट किया था. Name of the style: the name of the style was taken from the title of Claude Monet work Soleil Levant. ठीक है. फ्रेंच में इसको सोलेल लिवेंट कहते थे जिसका टाइटल था इम्प्रेशन सनराइज. अर्ली इम्प्रेशनिस्ट violated the rule of academic painting mostly outdoor scenes of everyday life, sunset, caves, cafes, field, water, boating, dogs, nature and landscape. The public at first hated the painting and then gradually come to believe that the impressionist had captured a fresh and original vision. ठीक है. पहले जो पेंटिंग्स होती थी लोग उसको एक्सेप्ट करते थे. जब भी एक नई चीज़ आई तो लोगों ने इसको जो है ना एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया कि हम ये पेंटिंग्स नहीं है, ये आर्ट नहीं है. लेकिन फॉर द टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे लोगों को समझ आती रही कि ये बहुत नेचुरल है और बहुत फ्रेश चीज़ पेंट कर रहे हैं, तो लोगों ने इसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था. द आर्ट क्रिटिक्स of that time continue to disapprove, calling the painting unfinished sketch. जो आर्ट क्रिटिक थे उन्होंने इसको कहा कि ये अनफिनिश स्केच है, ये पेंटिंग नहीं है. ठीक है. उन्होंने इसको ये कह के डिसअप्रूव कर दिया था. Impressionist characteristic and definition: short, thick brush stroke capture mood, not detail. The paint is often applied impasto. Thick application of painting are made in outdoors. Colors
are not blended or smoothly shade, wet on wet or alla premium. यानी Italian words है इस painting technique which layer of wet paint are applied to previous layer of wet paint. जिसका इटालियन वर्ड्स है जिसका मतलब है कि आप वेट लेयर पे आप काम करते हैं, क्विक काम करते हैं. आप ये नहीं सोचते कि वो लेयर जो हमने पहले लगाई है वो ड्राई हो जाए तो फिर हम उसके ऊपर दूसरी लेयर लगाते हैं. ठीक है. द टेक्निक रिक्वायर्स अ फास्ट वे ऑफ वर्किंग पेंटिंग ड्यूरिंग इवन टू गेट the shadowy effect of the light in the evening or to light. ठीक है. The play of natural light is emphasized, reproduction and any imitation of a work of art. इन शॉर्ट, अगर हम इन सब चीज़ों को इन शॉर्ट करके बयान करें तो उसका मतलब ये है विजिबल ब्रश स्ट्रोक थे, उसके अंदर लाइट कलर थे, एम्फिसाइज ऑन लाइट थी, चेंजिंग क्वालिटी ऑफ लाइट, हाई स्टॉक मॉर्निंग, हाई स्टॉक मिस्ट, ऑर्डनरी सब्जेक्ट थे, इनके अनयूजुअल विजुअल एंगल्स थे, मतलब इनके एंगल्स बड़े अजीब थे कि जहाँ से अच्छा लगा, जो व्यू अच्छा लगा उसको पेंट कर लिया. ओपन कंपोजिशन थी, कोई स्पेसिफिक कंपोजिशन डिसाइड करके पेंट नहीं करते थे कि हमने सिर्फ इतना एरिया पेंट करना है बाकी एरिया नहीं पेंट करना. इनकी ओपन कंपोजिशन थी. अब ये कुछ इमेजेस हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे बात कर रहे थे कि अनयूजुअल इनके जो थे ना वो कंपोजिशन थी कि अब ये आप ये देख लें जो इन्होंने कैफ़े का पार्ट से सीन लिया हुआ है, ये अब ये अनयूजुअल कंपोजिशन है. ऐसे इससे पहले इस तरह की कंपोजिशन नहीं थी. डेली लाइफ को पेंट किया था, लाइट पे फोकस था, ओपन कंपोजिशन थी. ये सब कुछ इनके काम के अंदर डेवलपमेंट था. और ये आप इस पेंटिंग से एक इन हर तरह के टाइम में इसी एक सीन को पेंट किया है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में. ठीक. टेक्निक, अब इसकी क्या टेक्निक थी इसको हम डिस्कस कर लेते हैं. शॉर्ट थिक स्ट्रोक थे उनके ऑफ पेंटर यूज टू क्विक सेंस ऑफ द सब्जेक्ट रेदर देन इट्स डिटेल. मतलब वो डिटेल को नहीं निकालते थे, डिटेल पेंट नहीं करते थे, उनका जो सब्जेक्ट होता था उससे क्विक उसी टाइम वो उसकी क्वालिटी के साथ उसे पेंट करते थे. कलर आर अप्लाई साइड बाय साइड विद द लिटल मिक्सिंग एज पॉसिबल क्रिएटिंग अ vibrant surface. The optical mixings of color arise in the eye of the viewer. मीन्स के साइड बाय साइड कलर लगाने का अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है कि आप साइड बाय साइड कैसे कलर लगा सकते हैं. फॉर एग्जांपल इन्हें ग्रीन कलर अगर लगाना होता था कहीं पे तो ग्रीन कलर को ये मिक्स करके ग्रीन कलर नहीं लगाते थे बल्कि येलो और ब्लू को इस तरह से साइड बाय साइड एक साथ लगाते थे कि वो व्यूवर्स को देखने में ग्रीन कलर ही लगता था. उसको मिक्स नहीं करते थे कि जब वो अप्लाई करते थे ब्लू और येलो को, जैसे ऑरेंज लगाना है तो ऑरेंज और रेड और येलो को इकट्ठा करके लगा दिया करते थे, या वॉलेट है तो रेड और ब्लू को इस तरह से साइड बाय साइड बिल्कुल साथ साथ लगाते थे कि वो जो था एक वॉलेट कलर का इम्पैक्ट तो थर्ड कलर का इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली आपको देता था. ये एक क्वालिटी थी इनके काम के अंदर. द प्ले ऑफ नेचुरल लाइट इज़ एम्फसाइज. Close attention is the paid to the reflection of the color from object to object. नेचुरल लाइट पे एम्फसाइज होता था और रिफ्लेक्शन ऑफ कलर जो था वो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज होता रहता था. मतलब जो जिस चीज़ को पेंट कर रहे होते थे उसका जो कलर का रिफ्लेक्शन था वो अलग होता था. अगर कोई और ऑब्जेक्ट पेंट कर रहे हैं तो उसका रिफ्लेक्शन कलर जो था वो अलग होता था. एक ही कलर स्कीम में ये पूरी पेंटिंग नहीं बनाते थे. Grays and dark tones are produced by mixing complementary color. In pure impressionism the use of black paint is avoided. मतलब black paint बिल्कुल यूज़ नहीं करते थे. डार्क कलर को जो बनाने के लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री जो कलर होते थे उनको मिक्स करके भी बनाते थे, एकदम से डार्क कलर नहीं लगा दिया करते थे. इन पेंटिंग मेड एंड प्लेन एयर means outdoors. Shadows are boldly painted with the blue of the sky as it reflects onto surface, giving a sense of freshness and openness that was not captured in painting previously. Blue shadow on snow inspired the technique. Birth of the movement of birth of modern art
इसने जो है इम्प्रेशनिज्म मूवमेंट जो आई थी, इसने मॉडर्न आर्ट को की जो बर्थ थी वो इसके बाद हुई थी, ठीक है। इम्प्रेशनिज्म बिकम द बर्थ ऑफ मॉडर्न आर्ट। ऑल द मेजर आर्ट मूवमेंट विच वुड फॉलो इंक्लूड पोस्ट impressionism, cubism, cubism or surrealism, abstract expressionism, pop art, they are beginning to इम्प्रेशनिज़म। मतलब ये सारी मूवमेंट जो थी वो इम्प्रेशनिज़म के बाद आई थी। उससे पहले बड़ा क्लासिकल पीरियड था, ठीक है, जिस पे काम करता था। अच्छा, अब हम इसके कुछ आर्टिस्ट हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली जो क्लॉड मोनेट है, इसको जो है ना इम्प्रेशनिज्म का फाउंडर कहा जाता है। मोनेट वाज द फाउंडर ऑफ इम्प्रेशनिज्म। ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट टू पेंट अ पिक्चर दैट डिड नॉट लुक लाइक अ photograph. Instead, the painting Impressionism sunrise looked very fuzzy, since no one had ever seen a picture like it. Everyone disliked it. Monet is most famous for his beautiful garden painting Impression Sunrise, bridge over a pond of water lilies or grey sticks. ये सब इसकी फेमस पेंटिंग है, जिसकी वजह से जो मोनेट था वो बहुत फेमस हुआ था। और इसी की पेंटिंग जो सनराइज़ थी उससे इम्प्रेशनिज़म का टाइटल, मूवमेंट का टाइटल दिया गया था। ये इसकी पेंटिंग्स हैं, वाटर लिलीज वाली हैं, इम्प्रेशन इज सनराइज है, और ब्रिज ओवर द जो है वो पेंटिंग है इसकी, तीनों उसी की पेंटिंग है, आप देख सकते हैं। विंसेंट वैन गो 1853 to 1819। अब ये जो वैन गो था, इवन थॉट वैन गो इज मोस्ट ऑफन लेबलेड अ पोस्ट इम्प्रेशनिज्म। हिज स्टाइल इज़ वेरी सिमिलर दैट टू द इम्प्रेशनिस्ट। His painting used very bright color and thick brush stroke. Style night over the Rohan Cafe, Tricania at night, Starry Night। ये इसकी जो है ना वो फेमस पेंटिंग्स हैं, और इसको भी पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट के तौर पे जाना जाता है। और इसके जो स्टाइल था, कलर जो थे वो बहुत ब्राइट होते थे और थिक ब्रश स्ट्रोक के साथ काम करता था। ये पेंटिंग है इसकी स्टारी नाइट है, कैफ़े वाली है, और फिर दूसरी टाइप का भी टाइटल स्टारी नाइट ही है। Alfredo Sisley, 1839 to 1899. Sisley was an impressionist landscape painter. He was the most consist of the impressionist in his dedication to painting landscape in plain air, small meadows in spring, land near a small town. ये इसकी पेंटिंग्स हैं जो कि बहुत फेमस हैं, ये आप देख सकते हैं। आप इसकी पेंटिंग में देखें, इसका ओपन कंपोजिशन है, लैंडस्केप है, तो हर चीज़ जो है बहुत फ्रेश पेंट की गई है। एडवर्ड डेगास 1834 to 1890 तक था इसका टाइम पीरियड। डेगा इज़ मोस्ट फेमस फॉर हिज पेंटिंग एंड स्कल्पचर ऑफ डांसर। He loved to sit in the theatre and watch the ballet dancer rehearsal and perform. He also loved to paint picture of cafe and people working the dance class, seated holding cards. ये इसकी फेमस पेंटिंग्स का नाम है। इसने ज़्यादातर जो है ना वो बेली डांसर को पेंट किया है, थिएटर में बैठना और उनको देखना, उनकी रिहर्सल करते हैं उनको देखना इसको बहुत पसंद था, इसलिए इसकी मोस्टली जो पेंटिंग है वो इसी टॉपिक के ऊपर इसने काम किया हुआ है, ठीक है। टुडे अब हम क्योंकि बात कर लें, क्योंकि इसी ने इम्प्रेशनिस्ट से ही बहुत सारी मूवमेंट डेवलप हुई हैं, तो आज इम्प्रेशनिस्ट का है। टुडे द इम्प्रेशनिस्ट स्टाइल इज़ वेरी मच अलाइव एंड अ वेरी सक्सेसफुल टेक्निक ऑफ पेंटिंग। थॉट मैनी आर्टिस्ट हैव पेंटेड इन द इम्प्रेशनिस्ट स्टाइल। द फॉलो आर्टिस्ट वर the innovators and master of their style, ठीक है। I hope you learn and understand this impressionist art. Your concerned teacher will discuss more and put your assignment. Take care. Allah Hafiz. Stay blessed. Thank you so much.